Good morning, children. I hope that you all are doing great. Today, we'll be covering some forms of verbs which will start from number 33 to 68. In PT1, we had already discussed from number 1 to 32. Now it's time to go ahead, starting with number 33. लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें बेटा नंबर 1 से 68 तक कंप्लीट आएगा, राइट? So before starting with the forms of verbs, let me just clear you one thing that till now, अभी तक हम कैसे करते आए हैं forms of verbs. We have been studying like first form, second form and third form of the verb. But now there is a slight change in the pattern. अभी आपको थोड़ी technical terms use करनी है as you all are growing up, right? So first form of the verb is called the present form. Second form is called the past form, and third is called the past participle form, right? Present form, past form, and past participle form. Okay, so number 33 is cut. कट मीन्स किसी चीज़ को काटना. अब यहाँ पर हम क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात कर रहे हैं, सो ये जितने भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड एज वर्ब्स एंड एज वेल एज नाउन्स. आप मेक सेंटेंसेस में करते हो, ठीक है. बट टुडे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ब्स मीन्स एक्शंस. तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्शंस के बारे में बात करेंगे. एक वर्ड को एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो कट 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 मीन्स किसी चीज़ को काटना. अब जब हम बात करते हैं इन प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स कि मैं काटता हूँ. देन इज पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म मीन्स मैंने काटा था. And then we have past participle form. Past participle form means कि मैं काट चुका हूँ. Alright, so let's take it one more time. That is, present means मैं करता हूँ. Past means मैंने किया था, कोई काम किया था. Past participle means कि मैं कर चुका हूँ. Okay, इस तरह से होते हैं ये. Then is number 34 पे we have dance. Dance means dance करना. So its form of verb is dance, danced, danced. 35 is deal. Deal means किसी सिचुएशन को हैंडल करना. ओके, जैसे कि समटाइम्स यू हैव सम सिचुएशंस इन विच यू नीड टू थिंक. ठीक है, तो आप उसको कैसे डील करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो. या फिर वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द शॉपकीपर्स, दैट अ शॉपकीपर डील्स इन अ गुड मैनर. ठीक है, शॉपकीपर जब कोई अच्छे तरीके से आपको हैंडल करता है, आपके साथ डील करता है, दैट इज़ कॉल्ड टू डील विद समबडी, टू डील विद अ सिचुएशन और विद अ पर्सन. सो डील, डेल्ट, dealt, D-E-A-L-T, dealt, again dealt. So deal, dealt, dealt. Number 36 is die. Die means जब कोई मर जाता है. So forms of verbs are die, died, died. Right? 37. Dig, dug, dug. Dig means ज़मीन को जब आप खोदते हो, जब आप मिट्टी को खोदते हो, that is called dig. So dig, dug, dug. 38 is do, did, done. Do means कोई काम करना. So did means किया था, done means मैं कर चुका हूँ. Now 39, draw, drew, drawn. Draw means जब आप कोई चीज़, कोई पेंटिंग या कुछ ड्रॉ करते हो एक शीट के ऊपर. Okay, so draw, draw, drew, drawn. Number 40, dream. Dream means कोई सपना देखना. So the forms of verbs are dream, dreamt, dreamt. So we have just added a T with dream. So it makes dream, dreamt, dreamt. Next is drink. Drink means कुछ पीना. So drink, drank, drunk. I repeat, drink, drank, drunk. इसमें हमने I को replace किया है with A and U. Right? Past form हो जाएगी drank and past participle would be drunk. Drive. Drive, drove, driven. So drive means कोई चीज़ जब आप चलाते हो, कोई vehicle चलाते हो आप, right? That is called driving. So drive, drove, driven. Number 43, drown. Drown means डूबना. So drown, drowned, drowned. हम ed add कर रहे हैं. Drown, drowned, drowned. 44, eat. Eat, ate, eaten. Eat means खाना. 45, fall. Fall, fell, fallen. Fall means गिर जाना. 46, feed. Feed means जब आप किसी को खाना खिलाते हो. Just suppose that you have some birds
ऑन योर टेरेस, आपके टेरेस पे कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, आप उनको दाने डालते हो, आप उनको फीड करते हो, उनको कुछ खिलाते हो, दैट इज़ कॉल्ड फीड करना. सो फीड, फेड, फेड. 47. फील. फील मीन्स जब आप कोई चीज़ महसूस करते हो. आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंड महसूस कर सकती हूँ. सो फील मीन्स कुछ महसूस करना. फील, फेल्ट, फेल्ट. 48. फाइट. फाइट मीन्स लड़ना. फाइट, फॉट, फॉट. आप उसको फाउट बोलते हो, विच इज़ रॉन्ग. दिस इज फाइट, फोर्ट, फॉट. 49. फाइंड. कुछ आपको जब आप ढूंढते हो, आपको कुछ मिल जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू से दैट आई जस्ट फाउंड 100 रुपीज़ लाइंग ऑन द फ्लोर. मुझे मिले, मुझे ये पैसे मिले. सो जब आपको कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइंड, फाउंड, फाउंड. देन इज फिट, फिट, फिट. किसी चीज़ को किसी चीज़ में फिट करना, ओके, उसको एडजस्ट करना, उसको फिट करना किसी चीज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना पैर जो है वो शूज़ में फ़िट करते हो, ठीक है. सो आई एम फिटिंग माई फीट इन द शूज़, राइट. नेक्स्ट इज फ्लो. फ्लो मीन्स बहना, नदियाँ बहती हैं. द रिवर वॉज फ्लोइंग, राइट. सो दिस इज फ्लो. फ्लो, फ्लोड, फ्लोड. फ्लो के साथ हमने ed लगा देना है. फ्लाई. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. फ्लाई मीन्स उड़ना. तो फ्लाई के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. 53. फॉरगेट. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. सो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. नेक्स्ट इज फॉरगिव. फॉरगिव मीन्स किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, किसी को किसी की गलती के लिए माफ़ कर देना. फॉरगिव, 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 फॉरगिवन. ओके, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन. 55 is freeze. Freeze means जम जाना. When you place something in the freezer of your refrigerator, then what happens to it? वो एकदम जम जाता है, right? So freeze, froze, frozen. Then is get. Get, got, got. Get means जब आपको कोई चीज़ मिलती है. Give. Give means किसी को कुछ देना. Give, gave, given. Next is go. Go, went, gone. Go means कहीं जाना. ग्रो. जब कोई चीज़ बड़ी होती है अपने ओरिजिनल साइज से, जैसे कि सीड्स जो हैं वो ग्रो होके प्लांट में बदल जाते हैं, ठीक है. प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होके ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ग्रो, ग्रू, ग्रोन मीन्स कोई चीज़ बड़ी होती है जब. नेक्स्ट इज हैंग. हैंग हैज़ टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, and hang, hung, hung. Okay, so the first one is hang, hanged, hanged. So in the movies also you must have listened to this thing that hanged till death, okay, which is जब तक कोई फांसी से किसी की सज़ा नहीं होती तब तक उसको लटका के रखना. So this is basically used for that punishment of हैंगिंग समबडी, किसी को मार देना जान से, स्पेशली जब फांसी लगा के किसी को मारा जाता है, ठीक है. सो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. देन इज हैंग, हंग, हंग. हैंग, हंग, हंग मीन्स व्हेन यू हैव हंग समथिंग ऑन द वॉल ऑफ योर रूम. जब आप अपने रूम की वॉल पे कुछ टांग देते हो, किसी भी रूम में किसी भी दीवार के ऊपर कुछ आप टांगते हो, दैट इज़ कॉल्ड हंग. हैंग, हंग, हंग वो उसके लिए यूज़ होता है. हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड इज़ अ पनिशमेंट जिसमें किसी को फांसी लगा दी जाती है. हैंग, हंग, हंग मीन्स दीवार पे कुछ टांगना, कहीं कुछ टांगना. देन इज हैव, हैड, हैड. हैव, हैड, हैड. हैव जो है एक बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है. आपने बहुत बार देखा होगा व्हेन समबडी सेज आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक न्यू बुक है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि मेरे पास कुछ है. हैव इज़ यूज टू टेल कि आपके पास कुछ है, ठीक है. या फिर इट इज़ ऑल्सो यूज टू मीन दैट मैंने कुछ खाया है. ओके, आई जस्ट हैड माई डिनर, मैंने अभी अभी डिनर किया है. ओके, सो हैव, हैड, हैड का मीनिंग कुछ खाना भी होता है या आपके पास कुछ है ये भी बताता है, ठीक है, या आपने कुछ कर लिया है. आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. सो दिस वे वी यूज़ हैव. इट्स यूज इन मैनी वेज. सो हैव इज़ द प्रेजेंट फॉर्म, हैड इज़ द पास्ट फॉर्म, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ ऑल्सो हैड. नेक्स्ट इज हियर. हियर मीन्स किसी को जब आप सुनते हो. हियर बेसिकली होता है जब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो लेकिन आपके कान में आवाज़ जा रही है लेकिन उतने ध्यान से आप सुन नहीं रहे हो. सो हियर, हर्ड, हर्ड. जैसे हम बोलते हैं कि यू आर सिटिंग इन साइड योर होम बट बाहर से कोई आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है. यू जस्ट से दैट आई जस्ट हर्ड सम नॉइस, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो एक केयरफुल लिसनिंग तो नहीं थी.
that is called hear. जब आप सुनते हो लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे होते हो, then it's called hear. Hear, heard, heard. Then at 63, hide. Hide means कुछ छुपाना. So hide, hid, hidden. 64 is hit, hit, hit. Hit means जब आप किसी चीज़ को कहीं टारगेट करके उसको मारते हो. Okay, hit, hit, hit. 65, hold, held, held. Hold means पकड़ना किसी चीज़ को. So its forms of verbs are hold, held, held. 66 is hope, जब आप उम्मीद करते हो. So hope, hoped, hoped. Then is hurt. Hurt means चोट पहुंचाना. Okay, you hurt me. आपने मुझे चोट पहुंचाई. So hurt, hurt, hurt. ये तीनों सेम रहेंगे. Keep, kept, kept. जब आप अपने पास कोई चीज़ रख लेते हो या आप कोई चीज़ कहीं पे रखते हो, मीन्स कहीं कुछ रखना. ठीक है. So keep, kept, kept. So these are the forms of verbs. Let me just speak them all once again very quickly so that you can understand their pronunciations, right? So the first one is cut, cut, cut. Dance, danced, danced. Deal, dealt, dealt. Die, died, died. Dig, dug, dug. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Dream, dreamt, dreamt. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Drown, drowned, drowned. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feed, fed, fed. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Fit, fit, fit. Flow, flowed, flowed. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Freeze, froze, frozen. Get, got, got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Hang, hanged, hanged. Hang, hung, hung. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hide, hid, hidden. Hit, hit, hit. Hold, held, held. Hope, hoped, hoped. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Alright, so that is all from my side. In case you feel there is confusion, you can contact me, bache. And I have one more work for you, that is you have to solve comprehension number 6 in your comprehension booklet. और ये जो आपकी forms of verbs हैं comprehension booklet के पीछे ही आपको attached मिलेंगी. So please have a look, go through them. In case you don't understand any meaning, just let me know. So take care of yourselves. Thank you very much.